Yes, dear students, today we discuss our last topic of chapter 4 and the last exercise is 4.4. And 4.4 question number is find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता करनी है और अगर वो रूट एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप हमें उसको फाइंड आउट भी करना है। आपको पता है रूट एग्जिस्ट किस कंडीशन में करते हैं। नेचर ऑफ द रूट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई एक्सप्लेन टू यू कि नेचर ऑफ द रूट इज गिवन बाय d और d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देयर आर थ्री कंडीशंस। If b square minus 4ac is greater than 0, तो आपको पता है that given quadratic equation has two real roots, two real and distinct root। दो रियल रूट होंगे और लेकिन डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। सेकंड कंडीशन जो है वो होती है if b square minus 4ac is equal to 0, तो the given equation have two real and equal roots। रियल भी होंगे और जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे। Now the third condition is if b square minus 4ac is less than 0। और आपको पता है लेस देन 0 कब होते हैं जब वो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो नेगेटिव, तो क्या होता है नो रियल रूट्स। यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको नेचर पता करनी है और उसको फाइंड भी करना है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए इन टू कंडीशंस के लिए तो रूट एग्जिस्ट करते हैं और अगर कंडीशन ये हो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो जो गिवन इक्वेशन होगी वो नो रियल रूट होगी। इस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x स्क्वायर minus 3x plus 5 equal to 0। First of all we find out the a, b and c। So you know that a is equal to 2, b is the coefficient of x, so it is minus 3 and c is constant term that is 5। When we check the nature by b square minus 4ac, to put the values of b square, b is minus 3, so minus 3 square minus 4, what is the value of a is 2 or c is 5। Minus 3 square is 9, 4 to the 8, 8 5 is 40, so it becomes minus 31। And it is clear that minus 31 is less than 0। It means the given equation has no real roots। It means ये exist नहीं करेगी। तो इसको आपको यहीं तक सॉल्व करना है और खत्म कर देना है क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जो कंडीशन है बाय नेचर ऑफ द रूट हमने देखा कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0, so the given equation has no real roots। Now we have to solve the question number 2। It is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equal to 0। First of all we find out the value of a, b and c। a is coefficient of x that is 3, b is coefficient of x that is minus 4 under root 3, c is a constant term that is equal to 4। Now we have to find the nature by b square minus 4ac। So when we put the value of b square, so b is minus 4 under root 3 का square minus 4, a is 3 और c is 4। When we solve it, so it becomes 16 3 is 48 minus 4 3 is 12 4 is 48, so it is equal to 0। What is the meaning? b square minus 4ac जो है वो क्या किसके इक्वल है 0 के। इसका मतलब है कि the given quadratic equation has two real and equal roots और इस केस में ये एग्जिस्ट भी करेगी तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। Now we have to solve by quadratic formula। Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। अब आपको b स्क्वायर माइनस
4ac को बार बार सॉल्व नहीं करना क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो क्या है 0 है, तो वी पुट 0 हियर माइनस b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस 0 का रूट अपॉन 2 और a की वैल्यू है 3. When we again solve it, so it becomes plus 4√3 plus minus 0 0√0 and 2 3s are 6. Now the two roots of x value 4√3 upon 6, 2 2 2 3 is 6, so it becomes 2√3 upon 3. दोनों ही इक्वल रूट्स हैं, तो दोनों ही रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे 2√3 upon 3 is the answer. This is the value of x. दोनों ही रूट यही होंगे because the given equation has two real and equal roots. I think you understood it. Now we have to solve question number 3 of this question, and question number 3 is 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Now a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3. We have to check the nature by b square minus 4ac. When we put the value, so it becomes -6 square minus 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3. Now 6 square is 36 minus 4 2 is 8, 8 3 is 24, so it is equal to 12. And you know that 12 is greater than 0, so it is clear that it is artist, and the given equation has two real and distinct root. इसको हमें पता करते ही पता लग गया कि distinct root है. Now we have to solve by quadratic formula. X is equal to minus b plus minus root d भी लिखा जा सकता है upon 2a. When we put the values, so it becomes -6 because b is already -6 plus minus d. d is under root 12 upon 2a. a की वैल्यू है 2. When we again solve it, so it becomes 6 plus minus root 12 क्या लिखा जा सकता है? root 12 लिखा जा सकता है 2√3 और अपॉन हो गया 4. Now we have to solve it again. तो x is equal to 1 टर्म आएगा x plus 2√3 upon 4 और एक और रूट आएगा x is equal to 6 minus 2√3 upon 4. When we solve it, so x is equal to 2 is common in this, so it becomes 3 plus √3 upon 2 और ये भी हो गया 2 is common, so it is 3 minus √3 upon 2. 2 से 2 cancel out, so it got the value of x 3 plus √3 and 3 minus √3. These are the values or roots of the given equations. I think you clear question number 1. Now we have to solve question number 2. Question number 2 is find the value of k for each of the following quadratic equations so that हमें वैल्यू पता करनी है k की, लेकिन आपको पता है k की वैल्यू हम तीनों कंडीशंस के केस में पता कर सकते हैं जो भी मिसिंग कोएफिशिएंट है उसकी, लेकिन हमें ये देखना है किस कंडीशन में सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. जरूरी नहीं कि हर बार जो क्वेश्चन है इक्वल रूट्स का हो. ये क्वेश्चन ऐसे भी सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द गिवन इक्वेशन हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. तो आपको इस कंडीशन में सॉल्व करना है. हमें k की वैल्यू बतानी है जब ये जो इक्वेशन दी हुई है उनका क्या है इक्वल रूट. नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और हमें वैल्यू पता करनी है k की. किस केस में? जब दिस गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. So we know that
we know that for equal roots आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर इक्वल रूट्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन इक्वल रूट्स की है तो उसका जो नेचर होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, a की वैल्यू है 2, b इज इक्वल टू है k and c is equal to 3. Why it is a, k and 3? Because a is the coefficient of x squared, that is 2, b is the coefficient of x, that is k, and c is constant term. Now we put the values of, so it becomes k square minus 4, a की value है 2 और c is 3 equal to 0. When we solve it, this becomes k square minus 24 equal to 0. So k square is equal to 24. 24 when go to right side, so it becomes positive 24. Now k is equal to हो गया under root 24 और k is equal to हो गया plus minus 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 root 6. तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6 की अंडर रूट है तो प्लस का हो सकता है माइनस का। So we have the value of k is 2 root 6. Now we have to find out the value of k in the second case. Now the second question is kx. What is the second question? Kx bracket x minus 2 plus 6 equal to 0. देखिए सबसे पहले ये अपने इसके करेक्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, कोई x स्क्वायर में नहीं है। तो आपको पता है बिफोर सॉल्व इट वी हैव टू कन्वर्ट इट। व्हेन kx स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय k so it becomes kx स्क्वायर minus kx is multiplied minus 2 so it is minus 2kx plus 6 equal to 0। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। नाउ वी हैव अगेन इसको भी k के सॉल्व करनी है हमें फॉर k इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is k because the coefficient of x square is now k. What is the value of b? b is minus 2k because the coefficient of x is now minus 2k. Now what is the value of c? The value of c is 6. Put the values in the b square minus 4ac. So b square is minus 2k square minus 4. a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 and equal to 0. Now 2k square is 4k square minus 24k is equal to 0. अब देखिए जब भी हमने इसको सॉल्व किया तो एक और पार्ट इक्वेशन होंगी तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन लेके तो 4k इज द कॉमन तो इट इज इक्वल टू k minus 6 equal to 0. Now 4k equal to 0 and k minus 6 equal to 0. So we have the two values k equal to 0 and k equal to 6. इस केस में इसकी k की दो वैल्यूज होंगी। If this equation have two equal roots, so the value of k is 0 or 6. इस केस में k की वैल्यू two वैल्यूज होंगी 0 और 6. I think you understood question number 2 very well. Now we have to solve question number 3. And question number 3 is a word problem. So first of all, we convert this word problem in quadratic equation, and after that we solve it if it is exist. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसी भी प्रॉब्लम से फॉर्म हो जाएगी, लेकिन आपको ये भी देखना है कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इसीलिए लिखा है कि क्या ये पॉसिबल है। अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square। क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ की, तो आपको बताया कहां से शुरू होगा। तो let the breadth breadth be x। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करे जा रहे हैं। let the breadth be x then length is equal
length is twice its breadth. Now the area is given, so we know that area is equal to होता है L into B. So L into B is equal to 800. When we solve it, this becomes 2x square equal to 800. Again, when we solve it, it becomes 2x square minus 800 equal to 0. इसको और हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0. ये लोवेस्ट हो गई है किसके थ्रू? 2 से. When we solve it, तो it becomes x square is equal to 400 और x is equal to under root 400. Then x is equal to plus minus 20. Yes, it is possible because we have the two roots plus 20 and minus 20. Now we have to find the length and breadth. So negative value is cancelled. So we take the positive value, that is x is equal to 20. तो length and breadth हम find कर सकते हैं. तो breadth is equal to हो गई x. breadth x की तो कितनी हो गई 20 मीटर और length हो गई उसकी 2x मतलब हो गई 40 मीटर. तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमने आराम से इसकी लेंथ और ब्रेथ पता कर ली और ये भी पता लग गया कि इट इज पॉसिबल है. आई थिंक यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3. कुछ नहीं था, बहुत इजी थी. लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है. उसके बाद एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये डायरेक्ट ही सोल्व हो गई क्योंकि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. तो आंसर आ गया x की वजह हो गई 20, x की ब्रेथ और लेंथ थी इसकी ट्वाइस तो हो गई 40 सेंटीमीटर. Now we have to solve the question number 4. Is the following situation possible? The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48. Two friends हैं, उनकी 4 years ago की जो एज है उनका प्रोडक्ट 48 है और अभी प्रेजेंट एज दोनों की मिला के कितनी है 20 है. आपको पता लग गया होगा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी. क्वेश्चन नंबर 4 है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. तो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज को हमने अज्यूम कर लिया है 8 इयर्स. तो आपको पता है द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो है वो कितनी हो जाएगी क्योंकि दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 20 इयर्स. इट इज 20 माइनस x इयर्स. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो उनकी प्रेजेंट एज का नहीं है 4 इयर्स अगो. तो सबसे पहले हमें 4 इयर्स अगो 4 साल पहले क्या है इस तरीके की बतानी पड़ेगी. तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 इयर्स अगो और वो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 इयर्स 4 साल पहले की एज. ऐसे ही द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो भी 4 इयर्स अगो कितनी हो जाएगी. अभी प्रेजेंट एज कितनी है 20 माइनस x और उसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 16 माइनस x इयर्स. और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि 4 इयर्स अगो जो भी एज है x माइनस 4 और 16 माइनस x उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 48. नाउ वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट बिकम्स 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 और इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स माइनस x स्क्वायर 16 and 4 प्लस 20x माइनस 64 minus 48 equal to 0. When we solve it, it becomes minus x square plus 20x minus 112 equal to 0.
minus 64 and 48 it becomes minus 112. When we remove the minus it becomes x square minus 20x plus 112 equal to 0. First of all we find out the nature, or we find out that it is this condition is exists or not, it is possible or not. So it is checked by b square minus 4ac. So here the value of a is 1, b is minus 20 and c is equal to 112. Now put the value. B is minus 20, so minus 20 square minus 4, A is 1 or C is 112. When we solve it, it becomes 400 minus 4 to the 8, 4 on the 4, so 448. And that is equal to minus 48. And you know that minus 48 is less than 0. If the b square minus 4ac is less than 0, so we know that given equation has no real roots. और जब given no real roots हो तो this condition is not possible और हम उसको यहीं पर लिख के और इसको खत्म करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है it is not possible और जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 4.4 का। उसके बाद चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। अगेन जो पार्क है वो रेक्टेंगल में है। पैरामीटर इज 80 एंड एरिया इज पैरामीटर का एरिया दिया हुआ है। तो पैरामीटर एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ हमें पता करनी है। लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पैरामीटर व्हाट इज पैरामीटर 2l प्लस b इक्वल टू दिया हुआ है 80 मीटर। पैरामीटर होता है 2l प्लस b इक्वल टू 80 मीटर होगा। Now 2 multiply by l plus b equal to हो गया 80 मीटर। When we solve it तो l plus b is equal to 40 मीटर। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आ गया एरिया। एरिया इक्वल टू होता है l into b और दैट इज दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। लेकिन हमें पता है कि हमें तो कन्वर्ट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 l इज इक्वल b इज इक्वल टू हो गया 40 माइनस l। l प्लस b इक्वल टू 40 है, b की वैल्यू होगी 40 माइनस l। उसको हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन 2 और जब हम इक्वेशन 2 है l मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस l इक्वल टू 400। सेकंड इक्वेशन l इनटू b b की वैल्यू क्या बताओगे 40 माइनस l। व्हेन वी सॉल्व इट इट बिकम्स 40l minus l square minus 400 equal to 0. When we convert into systematic way, it becomes l square minus 40l plus 400 equal to 0. When we solve it, it becomes l square minus 20l plus 400 equal to 0. इसको मैंने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। l is common तो l minus 20 is common, so it becomes l minus 20 equal to 0. Now l minus 20 or l minus 20 equal to 0. So what is the value of l? l is equal to 20. आपको पता है l की वैल्यू दोनों केस में 20 आएगी, तो l की वैल्यू आ गई 20 और b की वैल्यू कितनी होगी? when we put तो l plus b कितना है 40। when we solve it l plus b is equal to 40, l की वैल्यू है 20 plus b equal to 40, तो b is equal to हो गया 40 मीटर। तो इट मींस लेंथ कितनी है 20 मीटर और उस रेक्टेंगल की ब्रेथ भी कितनी है
I think you understood exercise 4.1 very well. 4.2 is also explained 4.3 and today our last exercise that is 4.4. ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहें.